Hello everyone, welcome to Defense Shows. I am Kiran Pandey, dealing with vocabulary session. Here we will read word, its meaning, antonyms, synonyms, and a statement, and after it a small quiz. Okay, so friend, please like our videos, share our videos, subscribe our channel. Okay, so here we move. The first word is relative. Relative is an adjective. It means comparative. Whenever we compare something, we use word relative. Like relatively this is greater than this one. Okay. Then synonyms respective, comparable. These are the synonyms of relative. Okay. Then antonyms absolute. Absolute means something which we can't compare, which we don't want to compare. Okay. These is called absolute. So let's form an example. The relative effectiveness of various mechanism is not known. Okay. The sentence says the relative effectiveness of various mechanism is not known. It means that the comparison is not known. The compare इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन. ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलनात्मक बोलते हैं. मीन्स जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड कंपैरिजन यूज़ करेंगे, रिलेटिव यूज़ करेंगे, रिस्पेक्टिव यूज़ करेंगे. ठीक है, और उसका अपोजिट आता है तो हम क्या एंटोनिम में क्या लिखेंगे, और एब्सोल्यूट लिखेंगे. एब्सोल्यूट क्यों लिखेंगे, बिकॉज एब्सोल्यूट एक कंप्लीट चीज़ होती है, और कंप्लीट को वी कांट कंपेयर. ओके, किसी के साथ हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो अपने आप पे क्या है, कंप्लीट है. ओके, सो जैसे हम बोलते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 99% प्योर अल्कोहल बाय वेट. व्हाट इज इट, इट्स एन एब्सोल्यूट अल्कोहल. ओके, सो इसको हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वर्ड. इट्स jealous. What does it means? It is an adjective. It means utsahi. See friend, let's break this word. Okay, this is derived from the word zeal. Okay, zeal means उत्साह. ठीक है, तो zeal is a noun. It means कि बहुत खुश होना, एक्साइटमेंट में रहना. ठीक है, ये क्या होता है, zeal का वर्ड होता है. अब just take an example. What would be the opposite? Opposite is apathy. Apathy, what does apathy mean here? Apathy means lack of interest. You don't have interest in any of the activity what you are doing. ठीक है, lack of interest. कोई इंटरेस्ट नहीं है जो भी आप काम कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपैथी बोलते हैं. ठीक है, सो कहीं पे को भी जीलस या जील जैसा कोई वर्ड आया तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अपैथी हो जाएगा. ठीक है, अपैथी हो जाएगा, अपैथिक हो जाएगा. सो इसका वो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, फर्वेंट. ठीक है, फर्वेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्लोइंग. ठीक है, ग्लोइंग लाइक अ सन, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्वेंट बोलते हैं. ओके, और एक और वर्ड है फर्विड. फर्विड क्या होता है, टू एन एक्सेसिव डिग्री. मतलब इतना उस डिग्री, बहुत ज़्यादा डिग्री में क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है. उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, फर्विड बोलते हैं. और ये फर्विड और फर्वेंट बेसिकली यूज़ होते हैं जील के लिए, जीलस के लिए. ठीक है, नाउ जस्ट फॉर्म वन एग्जाम्पल. द काउंसिल वॉज एक्सट्रीमली जेलस in the application of regulation. Okay, the council was extremely fervent in the application of the regulation, we can say like this. Okay, now moving toward the next word is hostility. Friends, see, hostility word itself suggesting that some yuddha type. Okay, fighting. Synonym would be conflict, right? Combat, fighting, these are all similar word. Fighting, combat and conflict all are related word, and in Hindi we call as yuddha. Okay, now what would be the opposite, peace, harmony. This would be the opposite of hostility. Okay, then see the example. He called for an immediate cessation of hostilities. ठीक है,
क्या हुआ, ही कॉल फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब ही कॉल फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ द फाइटिंग. Now, the next word is agitate. Agitate is a verb which means upset. Okay, which mean upset. Synonyms is perturb. Okay, what is the synonym of it? It is perturb. It means making someone anxious or unsettled. Means comfortable feel नहीं करना, upset होना. ठीक है. Perturb का means क्या है? Making someone anxious. ठीक है. Making someone anxious and unsettled. Okay, unsettled is called perturb. Okay, then what is the meaning of fluster? Fluster mean confused. Okay, flustered mean confused. The person is confused. These are the synonyms of agitate. Okay, agitate is a verb which means upset. Synonyms are perturb and fluster. Perturb here means anxious or unsettled, and fluster means confused. Now let's form an example. The thought of questioning Tony agitated him extremely. Means कि जो क्वेश्चनिंग थॉट्स थे टॉनी के, वो क्या क्या हुए, एजिटेट करे. एक्सट्रीमली एजिटेट मतलब अपसेट करे उसको बहुत ज़्यादा. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, इट्स ग्लोरीफाई. ग्लोरीफाई इज इन वर्ब. Glorify meaning ennoble. Ennoble means, ennoble here suggests that giving someone a noble rank or title. What does it mean? You are giving someone a noble title. Okay, then what are the synonyms of it? These are the exalt and elevate. Okay, now I would like to explain the meaning of exalt. It's rise to a higher rank or position. कोई किसी का रैंक को हम बताना चाहेंगे, उस टाइम पे हम एक्सैल्ट वर्ड यूज़ करेंगे. और एलिवेट भी हम उसी लिए, एलिवेट तो होता है ना बढ़ना. ओके, तो सिनोनिम्स ऑफ ग्लोरीफाई आर एक्सैल्ट एंड एलिवेट एंड एनोबल. एनोबल मीन्स गिविंग समवन अ नोबल रैंक और टाइटल. ओके, what are the antonyms of it? ओके, इट्स वेरी सिंपल. ओके, ऑनर है, एलिवेट है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसऑनर हो जाएगा. ठीक है. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल. अ फुटबॉल वीडियो वेंट वायरल ग्लोरीफाइंग वायलेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज abate. Abate is the commonly used word. Okay, abate is a verb and it means subside. Subside means घटना, कोई चीज़ कम होनी, उसे हम क्या बोलते हैं, अबेट बोलते हैं. ठीक है. बिकमिंग लेस. ठीक है. देन व्हाट इज अ सिनोनिम्स? लेसन मतलब कम होना. लेटअप मतलब क्या होता है? लेटअप मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस, और भी कम हो जाना. अगर थोड़ा बचा है वो और भी कम हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटअप बोलते हैं. ठीक है. एंटोनिम इंटेंसिफाई. इंटेंसिफाई, व्हाट डज इंटेंसिफाई मीन्स? इंटेंसिफाई मतलब बढ़ जाना. ओके, कोई चीज़ इंटेंसिफाई हो गई कि बोलते हैं तो क्या हम क्या हो गए, बढ़ गई वो चीज़. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा किसका, सबसाइड का. लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल. इन एन आवर और सो द स्टॉर्म वुड अबेट एंड दे कुड लीव. बोल रहे हैं कि हाफ एन आवर में स्टॉर्म क्या होगा, कम हो जाएगा, लेटअप हो जाएगा. ठीक है, तो वो जा सकते हैं उस टाइम पे. आई थिंक इट्स क्लियर. Now moving toward the next word is fleeting. Fleeting is an adjective. Okay, it means brief, मतलब थोड़े में. Okay, synonyms are transient and short-lived. Transient means परमानेंट नहीं है कोई चीज़, थोड़े से फेस के लिए है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फेस बोलते हैं. और शॉर्ट लिव्ड है. तो दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ फ्लीटिंग. ओके, सो एंटोनिम्स वुड बी लास्टिंग, मीन्स बहुत टाइम तक रहने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लीटिंग का एंटोनिम होगा. ओके, एग्जाम्पल्स आर फॉर अ वेरी फ्लीटिंग मोमेंट आई सॉ हिज फेस, मतलब थोड़े से टाइम के लिए मैंने उसका फेस देखा. राइट, सो फ्लीटिंग का मीनिंग क्या है, ब्रीफ. ठीक है, सिनोनिम्स क्या हैं, ट्रांसिएंट और शॉर्ट लिव्ड. ओके, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लास्टिंग हो जाएगा. एवर लास्टिंग, लास्टिंग, दीज विल बी एंटोनिम. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज ग्लॉसी.
ग्लॉसी इज एन एडजेक्टिव, ग्लॉसी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विच मीन्स एक्सपेंसिव, मतलब महंगा, ओके. सिनोनिम्स वुड बी हाई क्वालिटी, स्टाइलिश, हाई क्वालिटी, दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ ग्लॉसी. देन एंटोनिम्स आर चीप, ठीक है, और लेस क्वालिटी भी बोल सकते हैं, चीप भी बोल सकते हैं, ओके. लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल, दैट इज जस्ट अनदर ग्लॉसी टीवी मिनी सीरीज, ओके, दैट इज जस्ट अनदर ग्लॉसी मिनी सीरीज, ओके. हाँ, जस्ट एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी, ये है अ मैगजीन प्रिंटेड ऑन ग्लॉसी पेपर. होते हैं ना ग्लॉसी वाले जो पेपर होते हैं वो एक्सपेंसिव भी आते हैं, ठीक है, तो ग्लॉसी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है. देन appealing, next word is appealing. Appealing means attractive or interesting, okay, attractive and interesting. ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, राइट. अट्रैक्टिव इसकी मीनिंग है. सिनोनिम्स वुड बी इंगेजिंग एंड एल्यूरिंग. इंगेजिंग और एल्यूरिंग. एल्यूरिंग मतलब क्या होता है, चार्मिंग. क्या होता है, चार्मिंग. चार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरिंग बोलते हैं. सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफ पुटिंग. सी फ्रेंड, ऑफ पुटिंग, व्हाट इज दिस ऑफ पुटिंग? ऑफ पुटिंग मीन्स नॉट प्लीजिंग or not likable, okay. You don't like someone, you could say off putting, right? For example, village life is somehow more appealing than cities, okay. What does example say? बोल रहे हैं कि गांव की लाइफ क्या है, किसी क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है सिटीज से, ठीक है, ओके. फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, टायरसम. टायरसम मतलब क्या होता है, थकाने वाला, बोरिंग काम, डल सा. टेडिशियस भी इसका होता है. टेडिशियस मतलब मोनोटोनस होता है, एक जैसा ही काम किए जाते रहते हैं, उसे हम मोनोटोनस बोलते हैं, राइट. देन एंटोनिम वुड बी इंटरेस्टिंग. किसी डल काम का ऑपोजिट ओब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा. देन एग्जाम्पल्स, वेडिंग इज अ टायरसम बट असेंशियल जॉब, ओके. नाउ इट्स अ क्विज टाइम, ओके. Relative. First word is relative. You have to find the similar meaning, okay. After some days we will do antonyms, don't worry. Relatives. Relatives का हमें क्या करना है, similar meaning find out करना है. तो first option है total, absolute, complete, comparable. अभी हमने पढ़ा था relative का क्या होगा, total होगा, absolute होगा, complete होगा या comparable होगा. रिलेटिव हम क्या बोलते हैं, कंपेरि किसी को वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ना, तो आंसर वुड बी कंपैरेबल, ओके. सो द सेकंड क्वेश्चन इज रियलिस्ट. सो आंसर ऑप्शंस आर fervent, apathic, lazy, weak. Options are fervent, apathic, lazy, weak. फर्वेंट होगा इसका आंसर, ठीक है. और तो सब ऑपोजिट वर्ड लग रहे हैं ये. जीलस ड्राइव फ्रॉम जील वर्ड ना. सो नेक्स्ट इज अपीलिंग. ऑप्शंस आर रिपल, करंट, अट्रैक्टिव, अर्डेंट. सो करेक्ट आंसर इज, अभी बताया था अल्यूरिंग, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा इसका आंसर. क्या होगा, अट्रैक्टिव. फोर्थ वन इज हॉस्टिलिटी. ऑप्शंस आर brotherhood, combat, silence, peace. So correct answer is fighting, combat, right? So right answer is combat. Fifth question is agitate. Options are composed, keep, calm, fluster. So correct answer is fluster. Agitate means fluster. Sixth question is glorify. Options are exalt, dishonor, ideally show off. So correct answer is exalt, okay. Then seventh is abate. Options are sharpen, rise, intensify, light up. So correct answer is light up, okay. Eighth question is fleeting. Options are transient, permanent, lasting, forever. So answer is transient, okay. Ninth is glossy. Options are stylish, hard, cheap, infamous. So stylish, in expensive, right. Then tiresome. Options are interesting,
tedious, tedious, downward chromosome. So right answer is tiresome क्या होता है? Dull, boring, tedious, right? So friends, here we have 5 MCQ for you. You have to do by yourself, and I would like to see these answer on the comment box, and I would take the name of the person who will give this 5 answer correctly. Okay, the questions are, you have to find a similar meaning. The first one is modest. Okay, second is custom, third is prolong, fourth is hostile, fifth one is Solomon. Okay, I hope you will do it, and I like to see this in the comment box. Thank you, keep learning, and please friend, if you haven't subscribed our channel, please subscribe it,